مشکل سمے میں الطاف بخاری جی نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں سچائی کی راجنیتی کروں گا اور اپنے غریب عوام، نوجوان، بے روزگار نوجوانوں اور اپنی ماتاؤں بہنوں کے لیے کام کروں گا۔ اپنا وکی سودن جی جنہوں نے بھی رسا، اور میں نے بھی سر ان کا پورا یوگدان دیا جیسے مجھے پارٹی نے گائیڈ کیا۔ نہیں چڑھنی ہے نا، لڑائی چلنی ہے نا، پل روار تے پل پار تو چلو پل روار تے پل تھوڑا اس لیے یہ ہو نہیں پایا۔ اب میں اپنی وانی کو ورام دے کے میں جناب ذوالفقار صاحب، غلام حسن میر صاحب، اسی بات کے ساتھ لینا ہے آپ میں اور سر میں جب آپ بخاری صاحب بھی شانہ بشانہ جتنے بھی لوگ جہاں پہ بیٹھے ہو یا بشانہ کی جو چلتا ہے پرم آدرنیہ بخاری صاحب، رجوری کی شان اور ہمارے محبوب رہنما چودھری نشارہ کے نوجوان اور اپنی پارٹی کے لیڈر جلد چودھری جی، موجز شہری، یہاں پہ تقریباً شان ہے۔ آج میری ماتائیں بہنیں پریشان، اس مشکل سمے میں الطاف بخاری جی نے جوانوں اور اپنی ماتا، ہمارے غریب انڈسٹری تو ہے نہیں جہاں، تو اگر وہ دکان سے اپنی روزی کما رہا ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ مجھے بتائیے وہ جماعت کہاں تھی جس کو آپ نے 25 سیٹیں دی تھی؟ وہ جماعت کو آپ نے سیٹیں اس لیے دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا یہ 2 خاندان آپ کو کشمیر کے کھا گئے۔ جب الیکشن کا رزلٹ نکلا تو 24 گھنٹے میں وہ جا کے ایک خاندان کی گود میں بیٹھ گئے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ وہی دھوکہ دھڑی کی؟ اگر ہم نہیں سچ بات کریں گے پھر کون بات کرے گا سچ؟ ہمیں سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کب تک یہ بانٹیں گے ریجن کے بیسس پہ، مذہب کے بیسس پہ۔ ہم جموں کشمیر کے لوگ ہیں، کوئی اللہ کو مانتا، کوئی بھگوان کو مانتا، کوئی گرو کو مانتا ہے تو ایک ہی اوپر۔ جب بچہ ماں کی پیٹ میں سے جنم لیتا ہے اس کا کوئی مذہب تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو پھر ہم اس کو بتاتے ہیں تم ست سری اکال کو ہوگے، السلام علیکم کے ہوگے، آدھا برس کو ہوگے۔ سب سے بڑا مذہب تو انسانیت ہے، وہ شاید ہم بھول گئے ہیں۔ آج جو اگر ہماری پریشانی ہے وہی انسانیت ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج جب ہمارے بچے ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پریشانی کا مسئلہ ہے نا، آپ کے لیے بھی ہے، یہ ہندو کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، کیوں ہر ایک کا بچہ، اور جاتا کیوں یہ بچہ، کیوں گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ گھر میں بیٹھا ہے، روز کیسے مانگے گا اپنے ماں باپ کو کہ 200 روپے دے دو مجھے دن کا خرچہ کرنا ہے۔ کہیں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، کہیں کتنی بیٹیاں ہماری شادی کے بنا بھی رہتی ہیں، کیوں نوکری لگ جائیں گی تب شادی ہو جائے گی۔ اب ہمارے سماج میں زوال بھی تو بہت ہے، اس لیے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے۔ یہ بات ابھی میں سن رہا تھا ذوالفقار صاحب کو کہ جب بارڈر پہ شیلنگ ہوتی ہے تو ہمارے لوگوں کو کیا کیا مصیبت ہے۔ مجھے بتائیے نا دلی میں کس کو یہ سمجھ ہے؟ ہمیں پورے جب ملک سے لیڈر آتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ہم لوگوں نے قربانی دی اس ملک کے لیے۔ بھیا کیا قربانی دی ہے آپ لوگوں نے؟ قربانی پوچھو نا ان لوگوں کو جو یہاں رہتے ہیں بارڈروں پہ، جو نوشہرہ کے بارڈروں پہ رہتے ہیں، یا جو آر ایس پورہ کے بارڈر پہ رہتے ہیں، سانبا کے بارڈر، سچیت گڑھ کے، راجوری، پنچ، پوری، گریز، پہلی گولی تو ہم کھاتے ہیں۔ اور ہمیں سکھاؤ گے کہ دیش بھکتی کسے کہتے ہیں؟ دیش بھکتی اگر کسی کو سیکھنی ہے تو جموں کشمیر کے لوگوں سے سیکھیں۔ اگر آج ہم بھارت کا حصہ ہیں، شاید بھارتی فوج کا اتنا اس میں یوگدان نہیں ہے جتنا جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے۔ ہم نے چھڑیوں سے ان لوگوں کو واپس بھگایا، اس کے بعد ٹھیک ہے فوج پہنچ گئی، لیکن اٹھے تو پہلے جموں کشمیر کے لوگ۔ اور آج ہمیں ہی کہا جاتا ہے آپ کی ریاست کو توڑ دیں گے، توڑ دیا، 2 حصوں میں کر دیا۔ یہ حق کس نے ان کو دے دیا تھا؟ مجھے لگتا ہے انہوں نے کہیں غلط سمجھ لیا۔ 2014 کا مینڈیٹ آپ کا جو جموں نے ان کو دے دیا تھا، وہ مینڈیٹ ریاست کو توڑنے کے لیے نہیں دیا تھا، کیوں مجھے معلوم ہے یہ ریاست دو نہ معذرہ شماری۔ تو جب ہمارے مسئلے سانجھے ہیں تو ان کا حل بھی تو سانجھا ہی ہے۔
आज वो वक्त गया। 72 साल हमें लोग लड़ाते रहे, कश्मीरियों को जम्मू वालों के साथ, जम्मू वालों को कश्मीरियों के साथ, कि कश्मीरी खा गए, और जम्मू वालों कश्मीरियों को कि जम्मू वाले खा गए। आज कोई किसी को नहीं खाएगा। ये हमारी अपनी रियासत है जो हमें वापस लानी है, इस पे हमारा हक। आप जो देखते हैं 2-3 ढाई महीने पहले जिन जमातों को जम्मू प्रांत ने दिल से वोट दिए थे 2014 में, उन्होंने आपके आशाने तोड़ने शुरू किए। आपकी बंजर ज़मीनें जो आपने अपने खून पसीने से फसल उगाने के काबिल की थी, उन्होंने वहाँ निकालना चाहिए। ये जी सरकारी है, ये जी कस्टोडियन है, ये जी घास चराई है। अरे भाई, जम्मू कश्मीर की ज़मीनें हैं, जम्मू कश्मीर के वासियों के पास है। आप कौन होते हो ले जाने वाले? और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आपकी एक ही ज़मीन किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। बात करते हैं कि उनको भी सबक सिखाना पड़ेगा कि उन्होंने हमें 74 साल अंधेरे में रखा, यहाँ सच का भी नहीं बोला। इसी तरह भाजपा ने भी हमारे साथ क्या अच्छा किया? अगर अच्छा किया मुझे करेक्ट करिए, क्यों मेरी आदत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अगर आपको लगता है नहीं बुखारी साहब आप गलत बोल रहे हो, तो आप मुझे बताओ। अल्ताफ साहब ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं नौशहरा में, या ये बताइए कि हमारे यहाँ सोने के पहाड़, ये पत्थर नहीं निकल रहे, सोने के पहाड़ निकाल रहे हैं वो। बात मेरे भाइयों, हमें भूल जाना है कि हम जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं, और जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे, मैं नहीं कहूँगा हम मुक्का दिखाएंगे, लेकिन हम हाथ जोड़ के सर ऊंचा रख के दिल्ली के साथ बात कर सकते हैं। हम मुक्का कभी नहीं दिखाएंगे, क्यों? हमें पता है हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ है। हमें अगर गाँव दिए तो दिल्ली ने दिए, मदावा भी उनके पास ही है, उन जख्मों का इलाज भी दिल्ली के पास ही है। लेकिन अगर आप एक मजबूत मैंडेट दे देंगे, हाथ जोड़ के ही फिर भी जाएंगे, लेकिन सर ऊंचा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप की भी सबकी यही उमंग होगी कि हमारे लीडर सर ऊंचा रख के दिल्ली के साथ बात करें, आपके मसाइल की बात करें, आपके हुकूक की बात करें। हमें ये नहीं है कि साहब हमारे लिए हेलीकॉप्टर दे दो, हम उन सियासतदानों में से नहीं हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं साहब अब हमने 50 करोड़ रुपए का घपला किया, हमें वो घपले में से निकाल दो। हम ये भी नहीं कहेंगे हम आपकी बात नहीं मानते, हम शेरनियाँ हैं या शेर हैं, हम वो भी नहीं है। हम इस मुल्क के वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, और जो रोज़ देते हैं। कल के एक अखबार में मैंने पढ़ा, जम्मू का सबसे बड़ा अखबार है, कि साहब यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है। तो मुझे बताइए साहब, मैंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की, होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की, आप तो कहते हो हम बहुत मजबूत हैं, और जो हमें भी पता है, ये नहीं कि वो कहते, हमारा मुल्क एक बहुत मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान जो बच्चों के लिए दूध नहीं दे सकता है, उनकी हालत इतनी ख़राब है, भला वो हमारा इलेक्शन रोक सकते हैं? अगर वो हमारा इलेक्शन रोक रहे हैं, फिर हमें बताइए, फिर तो शायद हमें उनकी तरफ बोलना पड़ेगा, जो हम मरने के दम तक नहीं बोलेंगे। क्यों? हमें अगर बोलना है तो हमें दिल्ली से बोलना है। हमारा हल ना इस्लामाबाद में है, ना लंदन में है, ना अमेरिका में है। हमारा हल अगर है तो दिल्ली में है। इसलिए ये जैसे ऐसे बयान कल पुंछ में भी हुआ, तो हमारे इस नौजवान साथी ने कहा कि वापसी के लिए अच्छा है, और मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ। इन्होंने एक छोटी सी सभा यहाँ रखी, बड़ी अच्छी सभा, लोगों से बात हुई, और मुझे यकीन है कि ये जो आज हमने बुनियाद अपनी जमात की यहाँ डाली है, कल एक आलीशान इमारत में तब्दील है। सिंपल सीधा सा है, जो चीज़ें हमने खोई है उन्हें वापस लाना, उनका बचाव करना, उनको वापस लाना, और वो सियासत लोगों के साथ करना जो सच्चाई पे मबनी हो, जिसमें कोई धोखाधड़ी ना हो। सर इलेक्शन आपको शायद आपने इसमें भी बताया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा को अंदर से खौफ खाई जा रही है कि वो ज़मीन खो चुकी है, जो ज़मीन पे उनका यहाँ एक छाप थी। उनको लगता है आज 2014 के नारे उनको नहीं चलेंगे, क्यों? वो खोखले साबित हुए, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है किसी चीज़ के हिसाब से। सर ये कहा भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, भाजपा की ही अपनी पार्टी है, क्या इसमें कितनी सच्चाई? मैं बताऊंगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड पार्टी है, और मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कहेगा कि मैं ए टीम हूँ, बी टीम हूँ, सी टीम हूँ, डी टीम हूँ। क्यों? जिस पार्टी को अपनी इलेक्शन के लिए परेशानी
पढ़ रही है वो लड़ेगी या ना लड़ेगी, वो किसी की ए टीम क्या बनेगी या बी टीम क्या बनेगी। और आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर भाजपा को जम्मू में किसी के साथ मुकाबला है तो अपनी पार्टी के साथ है, और कश्मीर में अपनी पार्टी को खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुकाबला है और किसी के सर जलाल देखिए मैं बताऊंगा, जो विकी सूदन साहब हैं अभी आएंगे, वो तो कल फैसला करेंगे, वो तो आवाम में बैठ के वो तो कल को फैसला करेंगे। अभी तो आज हमने बीज बोया है, यहाँ आज बीज बोया है और उम्मीद करते हैं कि ये बीज अच्छी फसल देगा जिससे यहाँ के लोग बेजार होंगे। जिस तरीके से सर यूपी में नया आंकड़ा जो आया, जो नमाज़ पढ़ने के लिए लोग ईदगाह के अलावा जो रोडों पे पढ़ रहे थे, और 2000 से ज़ायद FIR अब जो है उन पे लगाई गई हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नमाज इंसान एक फ़र्ज़ निभाता है, ये इंसान का अपना फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज पढ़ते हुए भी राहगीरों का भी ख्याल रखना होता है, उस पर किसी का FIR नहीं चलता। बात को देखने के लिए मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ के ऑर्गेनाइजर को, जिसने इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको यहाँ पे इकट्ठा किया। आज एक वक्त बदलाव का है, आज एक वक्त चेंज का है। यहाँ किसी मेरे साथी ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने एक बड़ा अरसा एक जमात के साथ चले, फिर उसके बाद हम दूसरी जमात के साथ चले, फिर हम तीसरी जमात के साथ चले। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें जो तकलीफ होती है, अगर हमें एक दवाई से उसका आराम नहीं आता तो क्या फिर भी हम वही दवाई खाते रहेंगे? नहीं, हम हमेशा फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई बदलते हैं। जो दवाई काम नहीं करती उस दवाई को डॉक्टर बदलता है। आप जो जनता है, आपको ये देखना चाहिए कि आपके मसाइब, आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानी का हल कौन सी जमात करती है। आपने कांग्रेस को आजमाया, आपने भाजपा को आजमाया, आपने MC को आजमाया और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों को आजमाया। मैं इस जिले का रहने वाला हूँ, मुझे नौशहरा के बॉर्डर के लोगों की मुश्किलात के बारे में पता है। मुझे वो दिन याद है जब पाकिस्तान के गोले यहाँ पे गिरते थे और हमारे लोग वहाँ से आके इस हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग में बैठे थे। 6-6 महीनों तक हमारे लोगों को यहाँ एक एक कमरे में गुजारा करना पड़ा, वो अपने घरों को वापस नहीं जा पाए। आज इतने अरसे के बाद भी, 5 साल गुजर जाने के बाद भी बॉर्डर के लोगों को अभी तक बंकर नहीं मिले। बॉर्डर के लोगों को फेंसिंग के आगे जाके कल्टीवेशन नहीं की जाती। उनकी कितनी मुश्किलात हैं। वो रहते तो बॉर्डर पे हैं। इस इलाके के लोग कोई सरकार से तनख्वाह नहीं लेते, बल्कि बिना तनख्वाह के वो देश की रक्षा करते हैं, अपनी जानों का आगे रख के बॉर्डर पे खड़े हैं और इस देश की रक्षा करते हैं। जिन्हें एक हफ्ता पहला जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी शामिल होए सी, और क्योंकि अल्ताफ बुखारी साहब का रजौरी पुंछ इलाके का टूर सी, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वापसी ते तुसी इत्थे जरूर आओ। और अज अल्ताफ बुखारी साहब इत्थे विक्की दे जिहड़े साथी विक्की दे थ्रू पार्टी नाल जुड़े ने, उन्होंने मिलन वास्ते इत्थे आए ने। अज का दिन पूरी दुनिया दे विच मेहनत कश लोगों का दिन बनाया जा रहा है। अज लेबर डे के तौर पर बनाया जाता है। पूरी दुनिया दे विच 1 मई नूं शिकागो दे विच जिहड़े मजदूर अपने हकों के लिए शहीद होए सी, अज भी मजदूर नूं अपने हकों वास्ते लड़ना पै रहा है। अज भी मेरे साथी इत्थे डेली वेजरां की गल कर रहे सी, किसान नूं, मजदूर नूं, डेली वेजर नूं उहदा हक नहीं दिता जाता। और जिहड़ियां पार्टियां इत्थे हुकमरान रही ने, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी रही है, MC रही है, कांग्रेस रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, इन्हां पार्टियां ने लोगों को सिर्फ झूठे लारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी जदों सत्ता 'च नहीं सी तो इन्हें 2 गल्लां उसले कहियां। पहला नारा उस वेले यह सी
کہ بہت صحیح مہنگائی کی مار اب کی بار موदी ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਹਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਡੋਗਰਾ ਪਹਿਚਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਸੀ ਡੋਗਰਾ ਰੂਲ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ यूटी बना ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ। तो अल्ताफ बुखारी साहब ने पार्टी बनाई कि असी इस रियासत दोबारा बहाल कर रही हैं, इत्थे दे नौजवानों को रोजगार मिले, बाहर दे लोग इत्थे नौकरियां ना करन और साडी ज़मीनां ते साडे लोकां दा हक रहे। इस गल नूं लै के पार्टी वजूद च आई।